بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شعیب انجم ہے اور جو کوئی بھی اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، السلام علیکم۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی پریشانی، مصیبت یا اس کو کسی تکلیف کا سامنا نہ ہو، یا ہماری پوری لائف کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوتا جس میں ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فیس کرنے کو نہ ملے۔ یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ ہے۔ تو اس ویلاگ کے اندر میں آپ سے اسی متعلق بات کروں گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے، پریشانیاں جو ہے، کیا ان کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اب ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ کائنڈلی بات پوری سنیے گا، لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ کو بات اچھی لگے، آپ اتفاق کرتے ہیں بات سے، تو دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں جو ہمارے لیے ایک بوجھ ہوتی ہیں، کیا یہ ہمارے لیے کوئی سزا ہے؟ جیسے عام طور پہ بولا جاتا ہے، ہم کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں جی یہ پتہ نہیں اس نے کیا گناہ کر دیا، اس کو اتنی بڑی سزا مل گئی ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ہماری بالکل ایک غلط سوچ ہے جو ہمارے اندر انسٹال کروا دی جاتی ہے بالکل اسٹارٹنگ آف دی ایج سے۔ اب دیکھیں، جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ہم بالکل ٹینشن فری ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، نہ ہی ہماری کوئی ایسی سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی پریشانی والا ایلیمنٹ جو آئے یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے۔ بالکل ٹینشن فری ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ پریشانیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور یہ تمام عمر ہمارے ساتھ چلتی ہیں۔ اب کیا یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی ناانصافی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں بات سمجھنے کے لیے۔ جب ایک بچہ جو ہے وہ 3-4 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو ہم اس کو اسکول میں ایڈمٹ کروا دیتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس کو کچھ سکھانے کے لیے ہم اس کو اسکول میں ایڈمٹ کرواتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کو کچھ ڈیز میں، کچھ ویکس میں جو ہے نا، وہ پہلے کچھ سکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹیسٹنگ ٹولز سٹارٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے کلاس ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اس سے ویکلی، منتھلی، مڈ ٹرمز، فائنلز اس کے ارینج کروائے جاتے ہیں اور اس کو ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ لیول جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے کہ اس نے کتنا سیکھا ہے۔ جب وہ یہ ایک کلاس میں سارے لیولز کور کر چکا ہوتا ہے تو ہم اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں، ہم اس کو نیکسٹ لیول میں بھیج دیتے ہیں، اور نیکسٹ لیول جو ہوتا ہے وہ پیچھے والے لیول سے ہارڈ ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ بالکل سیم ایسے ہی میٹر ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو ہماری ریئل لائف ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو دیکھیں، ہمیں یہاں پہ موج مستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہوا، یا ہمیں یہاں پہ عیاشی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہوا۔ ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، ہم نے یہاں سے کچھ سیکھنا ہے، جو سیکھیں گے ہمیں کل کو قیامت والے دن اس کا رزلٹ پکڑایا جائے گا کہ آپ کو بھیجا تھا، آپ نے کیا کیا ہے۔ اب جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو بالکل سٹارٹنگ میں جو ہمارے کچھ سال ہوتے ہیں وہ ٹینشن فری ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوتا، ہماری سوچ ہی ایسی ڈیولپ نہیں ابھی ہوئی ہوتی کہ ہمیں کسی چیز کی ٹینشن جو ہے وہ آئے، دماغ میں کوئی پریشانی آئے۔ آہستہ آہستہ ایج بڑھتی ہے، ہماری پریشانیاں جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہیں اور پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک اسکول میں بیٹھے بچے کے جو ٹیسٹ کا لیول ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر بچہ ٹیسٹ کا لیول جو ہے وہ فیس کرتا ہے اور اس کو پاس کرتا ہے تو نیکسٹ اپ گریڈ کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ٹیسٹنگ ٹولز پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ یہ پریشانیاں، مصیبتیں یا تکالیف ہوتی ہیں، یہ ہمارے لیے ٹیسٹنگ ٹولز ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ٹیسٹنگ ٹولز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو جو سکھلایا گیا ہے یا اس کو جو لائف پرووائڈ کی ہے، اس نے کیا سیکھا ہے، کیا یہ ہمارے ٹیسٹ کو پاس کر گیا ہے۔ اگر ہم اس کو فیس کرتے ہیں، اس کو پاس کرتے ہیں، تو ہمیں نیکسٹ لیول میں اپ گریڈ کیا جاتا ہے۔ ہم نیکسٹ لیول پہ اپ گریڈ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ لازمی ہمیں اس سے ہارڈر لیول جو ہے وہ فیس کرنے کو ملے گا۔ لیکن ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کوئی پریشانی کو فیس کیا جی، اب اس کے بعد جو نا وہ ہماری زندگی میں سکون ہوگا۔ دیکھیں، سکون لازمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ہمیشہ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکل کے بعد ہماری عیش شروع ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ مشکل کے بعد آسانی کا مطلب جب آپ ایک ٹیسٹ کو کور کر چکے ہیں، اس کو کلیئر کر چکے ہیں، تو جب دوبارہ وہی سرکمسٹانسز ہماری لائف میں آئیں گے تو ہم اس کو ایزیلی پار کر سکتے ہیں، اس کو پاس کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔
जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती चली जाती है, इन डिफ़िकल्टीज़ के अंदर जो है ना वो अपग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। हमारे लिए नई नई डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो डिफ़िकल्टीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। हम गलती क्या करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, गलती हम भी करते हैं, कुछ हमें सिखाने वाले भी करते हैं कि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को बजाय फेस करने के, इनसे भागने का तरीका हमें सिखाया जाता है। हमें दुआ ही ये सिखा दी जाती है कि ऐ अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात दूर फरमा दे। मुश्किलात दूर नहीं होती, हमारा टेस्ट है ये, हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करके सबमिट करवाना है कि हमें जो सिखाया गया था हमने उसके मुताबिक टेस्ट सॉल्व किया, हमें पास किया जाए। तो हमें ये गलती नहीं करनी कि हमें मुश्किलात से दूर भागना है या शॉर्टकट्स ढूंढने हैं कि किसी के पास चले गए जी हमें दम कर दें, हमें कोई तावीज़ दे दें, ये हमारा काम फंसा हुआ है, ये ज़रा फटाफट हो जाए, या हमारे दिमाग में ये टेंशन चल रही है, कोई विर्द ऐसा बता दे कि ये सारा कुछ हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, तवक्कल अल्लाह ताला के ऊपर लाजमी रखें, ज़िक्र उसका लाजमी ज़ुबान के ऊपर रखें, ये बरकत है, ये आपको स्ट्रेंथ देते हैं। स्ट्रेंथ की तरफ आएँ, भागने की तरफ ना आएँ। जब आपके ऊपर कोई डिफ़िकल्टी आपके ऊपर जो है ना वो आती है, आपको फेस करनी पड़ती है, तो काइंडली उससे भागें नहीं, जो कि हम करते हैं, जो कि हमारी गलती है और हम स्टार्ट से करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता, वो उधर ही रह जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। हमने शॉर्टकट्स अपना लिए होते हैं और हर आने वाली मुश्किल हमें ज़्यादा बुरे तरीके से जो है वो फेस करने को मिलती है। हमने सीखा कुछ नहीं होता, पहले हमने पिछला लेवल अपग्रेड नहीं किया होता अपना, और नई मुश्किल को हमें और ज़्यादा मुश्किल तरीके से फेस करना पड़ता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने माइंड को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स और जो सोचने की एबिलिटी है उसको कंट्रोल करने वाला हमारा दिमाग है, लेकिन हम दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हैं और इससे काम लेते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। देखें, हमारे पास सबसे बड़ी पावर इस वक्त कौन सी है? हमारे पास सबसे बड़ी पावर इस वक्त हमारा ईमान है, हमारा इस्लाम है, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो लाजमी तौर पे हम कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बदकिस्मती या फिर हमारी गलती ये है कि हमने इस्लाम को दिल में रखा हुआ है, दिमाग तक पहुंचने ही नहीं दिया। हमें इस्लाम को दिमाग तक पहुंचाना है, हमें इसको हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर अप्लाई करना है। इसको सिर्फ हमें शॉर्टकट्स ढूंढने में या फिर बख्शिश करवाने में इस्तेमाल नहीं करना। हमें वे ऑफ लाइफ बता रहा है, हमारा जो रिलीजन है वो हमें वे ऑफ लाइफ दे रहा है, हमें उसको पिक करना है और इसको पिक करके दिल में नहीं, ज़ाहिरी बात है दिमाग के अंदर रखना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले हमारा दिमाग करेगा। हमारा ब्रेन जो है वो हमें बताएगा कि हमें किस वक्त क्या करना है, और अगर ब्रेन तक इस्लाम पहुंचा ही नहीं तो हम अच्छे फ़ैसले कैसे कर सकते हैं? हम किसी हार्ड जो है सिचुएशन को कैसे फेस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम उससे भागेंगे। अपने दिमाग तक जो है वो अपने इल्म को पहुंचाएं, अपनी पिछली गलतियों से, अपने पिछले टेस्ट डिफ़िकल्टी से सीखें और जो सीखेंगे वो अपने दिमाग तक पहुंचाएं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। देखें, जब हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत आती है तो रोना धोना स्टार्ट मत कर दें, बल्कि क्या करें कि अपने माइंड को फ़ौरन तैयार करें और टाइम लें उसका, अपनी लाइफ का कुछ टाइम दें उसको, उसके बारे में सोचें, फ़ौरन रिएक्ट मत करें। जैसे ही आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसको फ़ील करते हैं अच्छे से, और फिर उसका सलूशन खुद ब खुद अल्लाह ताला आपको प्रोवाइड करते हैं। अल्लाह ताला से मदद मांगें। मदद मांगने का सबसे एक बेस्ट टूल क्या है कि जो कुछ आपके पास मौजूद है पहले तो उसका शुक्र अदा करें। जब आप अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट जो नेमतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उसका शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला को थैंक्स बोलने का आपको तरीका आ जाएगा, तो वो आपकी हेल्प लाजमी करेंगे। हेल्प ये नहीं करेंगे कि वो आपकी मुसीबत ही ख़त्म कर देंगे, वो बात बिल्कुल गलत है जो ऑलरेडी आपको बताई है। हेल्प कैसे करेंगे? वो आपका हाथ पकड़ेंगे और उस मुसीबत में से गुज़रते हुए आपको बाहर निकालेंगे, उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी लेवल की हैं, जिस भी वजह से हैं, देखिए वजह जितनी भी होंगी वो आपकी ज़ाती बनाई हुई ना हो, जितनी
जितनी भी मैंने बातें की हैं वो आपकी ज़ाती बनाई हुई परेशानियां ना हो। ऐसा ना हो कि आपकी कुछ ज़ाती ख्वाहिशात हों और उस वजह से आप बहुत परेशान हैं और आप बोले जी इसमें तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा जो आप बता रहे थे। वो फार्मूला नहीं लगेगा। जो हमारी ज़ाती बनाई हुई परेशानियां होती हैं वो कुदरत की तरफ से नहीं होती, बल्कि वो बिल्कुल फजूल होती हैं कि जी हमें ये चीज़ बड़ा सा बंगला चाहिए था, पैसे क्यों नहीं आ रहे, हम बड़े परेशान हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बात की है, ऐसी परेशानियों की मैंने कोई बात नहीं की। जो परेशानी हमारे लिए टेस्टिंग टूल है, जो मुसीबत तकलीफ़ हमारे लिए टेस्टिंग टूल है, वो बाय नेचर हमें मिलती है और हमें उनको सॉल्व कैसे करना है, हमें उसके ऊपर वर्क करना है। हमें पिछले टेस्ट को अपने जहन में रखना है और हमने जो कुछ वहाँ से सीखा है उसको अप्लाई करना है। दूसरों के पास नहीं भेजना, हमने अपने मैटर को अपने तक रखना है या कम अज़ कम अल्लाह ताला के साथ शेयरिंग रखें। सिर्फ देखें, लोगों से आप जब उम्मीदें जोड़ लेते हैं कि वो फ़लाँ बंदा आपका हेल्पर है, फ़लाँ बंदा आपकी हेल्प करेगा, वो अब मुसीबत के वक्त आपके साथ होता है, तो ये सिर्फ एक ख़ास मतलब तक चीज़ होती है। आपके साथ कोई भी ऐसा शख्स जो है वो अटैच नहीं हो सकता परमानेंटली जिसको आपसे कोई फ़ायदा ना हो। हर बंदा दूसरे के साथ किसी न किसी फ़ायदे के लिए अटैच होता है। बिला वजह अगर आपको कोई फ़ायदा देता है तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की हस्ती होती है जो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा जो है वो प्यार करने वाले हैं। या अगर इस दुनिया में अगर आपको कोई साथ देने वाला मिलता है तो वो आपके पेरेंट्स होते हैं। हाँ, उनसे अपनी परेशानियां डिस्कस करें। वो भी अगर आपको किसी बाबे के पास भेज रहे हैं तो काइंडली खुदारा इस चीज़ से बचें, अपनी परेशानियां खुद सॉल्व करने का अपने अंदर एक एलिमेंट जो है वो रखें। अपने ब्रेन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसके लिए करना क्या है कि हमें अपने इस्लाम को, हमें अपने मज़हब को, दीन को ब्रेन तक लेके जाना है। उसको सिर्फ दिल में ना बिठा के रखें, हमें बड़ा इस्लाम से प्यार है, हमारे दिल में है, हमारे दिल में सारी हस्तियां हैं। देखें, दिमाग तक उसको लेके जाएंगे तो हमारे दिमाग की नशोनुमा होगी। सारा कुछ दिल में रखने के लिए नहीं होता। तो एट द एंड बात यही है कि जितनी भी हमारी मुसीबतें परेशानियां होती हैं वो हमारे लिए टेस्टिंग टूल्स हैं। वो हमारी टेस्टेशन के लिए हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं। हमें उनको पास करके गुजरना है, हमें उनको फ्लाईओवर करके जो है वो बिल्कुल भी नहीं गुजरना है, या हमें दूसरा रास्ता शॉर्टकट यूज़ नहीं करना। ये हमारे लिए है। हमें अल्लाह ताला ने अगर यहाँ पे भेजा है तो हमारे लिए सारा साजो सामान मुहैया किया हुआ है। अल्लाह ताला हमारे साथ बिल्कुल भी हमारी बोझ से ज़्यादा या हमारी औकात से ज़्यादा कोई भी परेशानी या मुश्किल या तकलीफ़ जो है वो हमारे ऊपर कभी भी नहीं भेज सकते या अप्लाई कर सकते। तो अपने आप को ग्रो करवाएं, अपने माइंड को ग्रो करवाएं और लाजमी इस्लाम को अपने दिल से दिमाग तक लाजमी पहुंचाएं। अब जितनी बातें मैंने की हैं इनको अप्लाई करना है, हमें अपने आप से स्टार्ट करना है, दूसरों तक भी पहुंचाना है ताकि अगर कोई अच्छी बात है तो वो दूसरों तक लाजमी पहुंचे। और अगर आपको मेरे नज़रिए से किसी भी तरह को कोई अगर इख्तलाफ भी है तो काइंडली वो आप बता सकते हैं ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके। देखिए, दूसरों के साथ जब हम कोई बात शेयर करते हैं तो अपना नज़रिया रखते हैं, अगर उसमें कोई इख्तलाफ भी होता है तो हमें उसको सुनना चाहिए ताकि सिर्फ दूसरों को बताते बताते हमारी अपनी भी इस्लाह साथ हो सके। सुनने का बहुत शुक्रिया, और अगर बात अच्छी लगे तो लाजमी दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। जज़ाक